Okay, so this class will be till 10:15 तक होगा, ठीक है? योगा क्लास we'll discuss about some few phenomena which are related to electromagnetic interaction with solid. So we will discuss about something called metamaterials. Metamaterials. Then it is also known as left-handed materials. We will try to understand how the concept of negative refractive index N left-handed materials. Left-handed materials. We'll discuss about how there is something called a negative refractive index. Negative refractive index से मतलब है, मान लो you have a certain liquid in a glass. Okay, this is air, this is liquid. So any light ray passing through the liquid, going to the liquid, ऐसे होगा, refract होगा. But instead of this, if we have a mirror image of this, यहाँ से मैं अगर normally इसको draw करूँ, instead of this, if we observe the light ray to be following this direction, this is of this occurs when your refractive index N is negative. तो ये it is not possible, natural occurring materials में ये possible नहीं हो सकता है. तो इसके लिए what we require is some engineered materials. Engineered materials, artificial materials. जिसको कि हम बोलते हैं कि मेटा मटेरियल. मेटा means something which is beyond. Beyond the word meta. The Greek word means beyond. These properties which are beyond the conventional materials. Meta materials. इसको समझने के लिए first of all, as I have said, we need to start with this electromagnetic interaction with solid. Solid यहाँ हम लोग mainly we consider metals and dielectrics. Dielectrics, ceramic metals और non-metals. अच्छा, metals में उन्होंने देखा होगा कि if we take very shiny materials, for example gold, steel, silver, ये दोनों बहुत shiny material है. Shiny मतलब क्या है? They reflect light. ठीक है? They reflect light. और इसके comparison if you take quartz, quartz में क्या shine करेगा? Light will be able to pass through it. Somehow we have quartz. वहाँ से मैं अगर एक light देता हूँ, so some way it will pass through the quartz. It will not get reflected. Reflect नहीं. तो कोई भी मटेरियल अगर किसी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और नहीं करता है, इसके पीछे कारण क्या है?
Why do some materials reflect light and some do not? Some absorb light. इसके पीछे कारण है फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मॉन फ्रीक्वेंसी. प्लाज्मॉन फ्रीक्वेंसी. चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली. हाँ, तो बेसिकली इट इज अच्छा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को बाद में चेक करेंगे. बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी बोल क्या रहा है ओमेगा. ये फ्रीक्वेंसी बोल क्या रहा है प्लाज्मॉन फ्रीक्वेंसी. हम लोग मिडल्स के केस में देखते हैं. मिडल्स में क्या है, बॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसा है. यू हैव आयनिक कोर्स, आयंस ऐसे करके, और इसके बीच यू हैव सम इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन है. Right, this is how it is, more or less this is how it looks like. Now इस केस में when I am supplying an electromagnetic wave, यहाँ पे electromagnetic wave जो है मतलब light, तो EM wave के दो कंपोनेंट होते हैं जो मैं जानता हूँ. वन इज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, वन इज मैग्नेटिक कंपोनेंट. So I can write the EM wave as ZT is equal to E0 exponential R kz minus omega t. Or similarly, I can write the magnetic field as H0 ऐसे में लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो, इट्स वेरी सिंपल, थोड़ा सा ध्यान लगाओ समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे नॉर्मली इलेक्ट्रॉन में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करता हूँ नॉर्मली, यूजुअली क्या मतलब क्या होता क्या है इसमें, हाउ विल एन इलेक्ट्रॉन रिएक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. नॉर्मली फ्री स्पेस में इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, क्या होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. कल का क्वेश्चन पूछ रहा था उन लोगों से, चार्ज पार्टिकल है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, कोई फोर्स एक्ट करेगा उसमें. क्या, कौन सा फोर्स एक्ट करेगा. अच्छा, एफ विल एक्ट ऑन कौन सा फोर्स होगा. क्या होगा एफ का वैल्यू, क्या होगा. एफ विल बी इक्वल टू, ये सब तो हाँ ये सब तो बेसिक चीज़ है ना, इसको इतना टाइम नहीं लगता है. ये होगा, ठीक है. इसका डायरेक्शन क्या होगा, स्ट्रेट लीनियर डायरेक्शन. इसी की करंट जनरेट होगा. हाँ, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो कंपोनेंट हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट है, इट शुड ड्राइव द इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रेट लाइन. मैग्नेटिक फील्ड में बाद में आ रहा है, दैट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड शुड कॉज द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन दिस डायरेक्शन. यहाँ पर फोर्स एक्ट करेगा, ये वाला है ना, ठीक है ना. लेकिन तुमको क्या लगता है कि जो आयनिक कोर्स है उसके साथ देयर विल बी अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग.
जो आयनिक फोर्स है ना इसके साथ इसका हल्का सा कूलम्बिक इंटरेक्शन है, सो देयर विल बी अ restoring force. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का एक डायरेक्शन पे और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे रिस्टोरिंग फोर्स, तो दोनों फोर्स विल मेक द इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट. ठीक है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई द इलेक्ट्रॉन विल ऑसिलेट. सो दिस इलेक्ट्रॉन, दिस ऑसिलेशन का एक फ्रीक्वेंसी होगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोनिक फ्रीक्वेंसी. इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज द डेंसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑसिलेटिंग. When they are oscillating, when at optical frequency. So this is optical frequency. ध्यान से देखो. क्वेश्चन के आंसर तुम लोग लिख लो. आई थिंक दैट इज नॉट बट हैविंग द राइट कॉन्सेप्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. ठीक है, ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी. अच्छा, नाउ आवर क्वेश्चन इज व्हेन विल a material reflect light, when will it absorb light. So ये जो frequency है, if this frequency is less than the plasmonic frequency, then it will reflect the light. However, if this is more than the plasmonic frequency, will absorb the light. तो मेटल्स के केस में ये वाला वैल्यू थोड़ा सा हाई होता है. दैट इज व्हाई 13 गीगाहर्ट्ज टू टेराहर्ट्ज इस रेंज में होता है. टेराहर्ट्ज 10 to the power -9, sorry -9, 10 to the power 9 is gigapascal. So 10 to the power 10 is टेट्रा. इस रेंज में, so you can understand it's very very high frequency. तो in the case of metals खास करके, तो इस फ्रीक्वेंसी को ओवरकम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के कारण. दैट इज व्हाई यूजुअली जो मेटल्स होते हैं दे डू नॉट एब्जॉर्ब लाइट, दे रिफ्लेक्ट लाइट. और जो क्वार्ट्ज या दूसरे मटेरियल्स होते हैं they absorb light. So some absorption of light. Clear है? अभी हम लोग आते हैं और एक कॉन्सेप्ट. ये जो लेस देन ओमेगा पी है, इसको हम लोग बोलते हैं कि they represent a material which is having negative permittivity. It is not permitting. Negative permittivity. If
ओके, और इसको हम लोग ऐसे भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। Epsilon Ng materials. Epsilon stands for permittivity and Ng stands for negativity. ठीक है, क्लियर है? नाउ सिचुएशन थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग चेंज करते हैं कि इंस्टेड ऑफ हैविंग ओनली मेटल, देयर इज अ मेटल, और एक मेटल है और एक दूसरा मटेरियल विच इज नॉन मेटल। ये मेटल नॉन मेटल में देयर इज एन इंटरफेस है। ये बहुत सारे केसेस में हो सकता है। ये नॉन मेटल मतलब वी कैन कंसीडर इट एज अ ग्लास भी कंसीडर कर सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो कंसीडर एज एयर भी कंसीडर कर सकते हैं, ग्लास भी कर सकते हैं। इस केस में क्या होता है कि whenever we are allowing the EM wave तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है EM wave ओमेगा, when it matches with the plasmonic frequency, then we have something called इसका नाम सुना है पहले? Have you heard about this term? SPR. It's called surface plasmon resonance. Surface plasmon resonance. रेजोनेंस मतलब मैचिंग ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज को हम रेजोनेंस और इसका कैसे, तो दिस सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस ये अभी चेंज करेगा, दिस फ्रीक्वेंसी विल चेंज व्हेन वी हैव डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग मटेरियल जब इस इंटरफेस में आ जाएंगे, सो देयर विल बी अ चेंज इन ओमेगा, इसको मैं अभी बोलूँगा SPR, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस चेंज इन फ्रीक्वेंसी, सो दिस एक्ट्स एज अ सेंसर, सो इट इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ सेंसर। इसके डिटेल में मैं बाद में आ रहा हूँ, पहले फिनोमेना को समझ लो। So at the metal non-metal interface, the EM wave frequency matches with the frequency surface plasmon frequency, और ये leads to a phenomena called surface plasmon resonance, and the surface plasmon resonance frequency changes with different materials, with जो कि analytes है ना, जो ones which are to be sensed, जो मटेरियल हमको सेंस करना है उसको एनालाइट्स होते हैं, और इससे क्या होता है SPR में चेंज होता है और वी गेट यूज एज ए सेंसर, ठीक है। अच्छा, अभी एक मटेरियल को हम लोगों ने जाना, राइट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल N is equal to permittivity and permeability, है ना। तो मुझे our objective is to find when we will have a negative refractive index, that is the characteristics of a metamaterial. तो इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए another condition that is required is your permeability should also be 0, है ना। दोनों नेगेटिव होंगे तभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग म्यू Ng मटेरियल्स।
ठीक है, एंटी स्टैंड फॉर नेगेटिव, नेगेटिव एंटी मीन्स नेगेटिव। और दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गए तो हम लोग इसको बोलेंगे DNG, डबल नेगेटिव मटेरियल। तो मेटा मटेरियल के कुछ और नाम हैं, जैसे कि पहले मैंने कहा था, दे आर ऑल्सो कॉल्ड LHM, लेफ्ट हैंडेड मटेरियल, और दे आर ऑल्सो नोन एज DNG, डबल नेगेटिव मटेरियल। अच्छा ना, ये वाला तो हमको समझ में आ गया। परमेबिलिटी को हम लोग नेगेटिव कैसे करें? परमेबिलिटी को नेगेटिव यहीं पे एक्चुअली जो इंजीनियरिंग जो स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बोल रहे थे, द फर्स्ट स्लाइड we say that these are not natural materials, they are basically engineered materials, क्योंकि ऐसा नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सिर्फ इंजीनियरिंग मटेरियल्स में ही पॉसिबल है। यहाँ पे इंजीनियरिंग मटेरियल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पे कि वी हैव अ स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं SRR। Single slit resonance, सिंगल स्लिट रेजोनेटर। ये कुछ नहीं होता है कि मेटल का एक शेप होता है जिसमें एक स्लिट होता है, मतलब there is a gap, so it can be like this, metal का gap, or it can be like this, it's circular, it's square. So what is the advantage of having a structure like this? So these two structures, they are equivalent to an LC circuit. और ये LC सर्किट कब बनता है? ऐसे केस में LC सर्किट नहीं बनता है। Whenever the electromagnetic waves are coming, when they are being bombarded with an electromagnetic wave, AM wave, तो ये वाला जो पोर्शन है ये कैपेसिटेंस बन जाता है, तो गैप वाला पोर्शन है, और जो मिडिल वाला पोर्शन है ये दिस बिकम्स द इंडक्टेंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद H जनरेट होता है और इट अपोजेस फर्दर मैग्नेटाइजेशन। It opposes further magnetization because इसका जो EZT ब्रेक को टाइम इसके साथ we have this HZT. HZT causes the magnetic field of the ring inductance, or this inductance opposes further magnetization, so this leads to a negative, मतलब और मैग्नेटाइज होने नहीं दे रहा है। It is not allowing further magnetic fields to enter into this. इसमें थोड़ा सा डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। और मैग्नेटाइज नहीं होने देते।
So this corresponds to having a negative conduit. अच्छा, यहाँ ये तो मेटल का बना था, दिस मेड ऑफ मेटल, इसमें ऑलरेडी दिस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट्स, ठीक है ना, दोनों ऑलरेडी दिस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट. नाउ वी हैव अ सिचुएशन वेयर बाय कंडीशन ऑफ डबल नेगेटिविटी हैज बीन अचीव्ड, ठीक है. सो आई हैव अ मेटामेटेरियल. अच्छा, मेटामेटेरियल ऐसा नहीं बन गया. मेटामेटेरियल बनने के लिए these structures, ये वाले जो structures हैं, either this or this, they are considered as unit cells. इसका मतलब है unit cell. इसका मतलब मेरा जो मटेरियल बनता है, it is actually a combination of these structures. ऐसे ठीक है. ये 3D So the SSRs, they are the unit cells. Okay, SSR they act as unit cells. ऐसे करके हम unit cell पे अरे करो. अच्छा, there is something called as CSSR. CSSR stands for complementary. कॉम्प्लीमेंट्री एसिस. कॉम्प्लीमेंट्री एसिस कैसे बनता है? अच्छा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है हम लोगों ने दिया मेड बाय मींस ऑफ मेटल, है ना. तो इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट फ्रॉम मेटल, हम लोग ऐसा भी कर सकते थे. हम लोग एक मेटल शीट ले लेते, और उसमें से हम लोग ऐसे कर्व डाउन करते हैं स्ट्रक्चर. राइट, काट के निकाल दो. सो नाउ दिस इज मेटल और दिस इज, ये क्या है? दिस एयर, है ना, ठीक है. तो इसमें ओनली दिस प्रॉपर्टी विल एग्जिस्ट. ये वाला जो प्रॉपर्टी है, दिस विल नॉट एग्जिस्ट. राइट, ये सिर्फ मेटल था. ये है टोटल मेटल शीट, जिसे हम लोगों ने इसको काट के निकाला है. सो दिस इज वेकेंट स्पेस. राइट, सो दिस इज एक्टिंग एज अ अच्छा, अभी जैसे मैंने कहा था, इसको लेफ्ट हैंडेड मटेरियल क्यों बोलते हैं? लेफ्ट हैंडेड मटेरियल इसलिए बोलते हैं कि इट इज रिफ्लेक्ट्स, रिफ्रैक्शन इसका मिरर इमेज होता है. सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंडेड. एक तो कारण ये है लेफ्ट हैंडेड मटेरियल होने का. एक कारण ये है. दूसरा कारण है कि इसके रिप्रेजेंट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऐसे करते हैं. जैसे इस केस में इट स्टैंड्स फॉर द नॉर्मल मटेरियल, ठीक है.
इस केस में this becomes so this is your normal material. ये हो गया एप्सिलॉन Ng मटेरियल, ये हो गया म्यू Ng मटेरियल, और ये हो गया d Ng मटेरियल. So it is, since it is in the left hand side, that is why this is also, this is a meta material mm or Dng. That is why it's called LHM, left handed material. ठीक है, इसको ध्यान से देखो, नोट्स को देखो, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क मी. मैं कुछ प्रॉब्लम्स तुम लोगों को दे रहा हूँ बेस्ड अपॉन दिस. देख देखो, एनी क्वेश्चंस दैट यू आस्क. अच्छा, और एक चीज़ है, द एक्सप्रेशन ऑफ सेंसिटिविटी, हाउ सेंसिटिव माय मटेरियल इज, इट इज बेस्ड अपॉन सेंसिटिविटी. सेंसस के यूज में इस्तेमाल होता है. सेंसिटिविटी, द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इज इक्वल टू sensitivity into the change in refractive index. ठीक है, this is the change in refractive index. This is sensitivity S, and this is the frequency shift. Basically, the resonance frequency shift. Why I am calling it as a resonance frequency shift? Because ये जो LC सर्किट जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, राइट, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वो सब पता होगा. इट इज f0 इज इक्वल टू 1/2 पाई LC. ठीक है, तो इसको मैं अगर प्लॉट करूँगा तो it looks something like this. It looks something like ट्रांसमिशन को मैं अगर प्लॉट करता हूँ, अगर प्लॉट ट्रांसमिशन विद फ्रीक्वेंसी, so you have a resonant frequency. So this is your F0. ठीक है, तो जो एनालाइट है, ये जैसे ही मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ ऑन मेटा मटेरियल, ऑटोमेटिकली दिस F0 वैल्यू इट चेंजेस, और वो चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट करता है. अच्छा, ये सेंसिटिविटी का यूनिट क्या होगा? व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ दिस सेंसिटिविटी? अच्छा, ये बेसिकली जैसे मैंने पहले कहा था, इट इज 13 हर्ट्ज में, हर्ट्ज 13 हर्ट्ज, दैट इज 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज, इस रेंज में. चलो, और ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका तो यूनिट होता है, इट इज 13 हर्ट्ज पर RIU, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट. सेंसिटिविटी का यूनिट है 13 हर्ट्ज पर
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जीपीसी की आया क्या? अभी तक आप आया नहीं ना। मैं जस्ट